So hello and welcome to the Utkarsh Parasha show. Today we have a very special guest, a man, a personality who generally does not need any introduction at all. He's very famous among all the business professionals. He's the CEO and founder of the most iconic brand in the real estate industry, Save Max Real Estate. The company has sold more than $10 billion worth of real estate since 2010 in Canada. He's none other than Raman Dua, sir. Well, I should call him an entrepreneur, a YouTuber, or a motivational speaker, or a guide, or a mentor, whatnot. He's all of them. So thank you so much, sir, for being on the show. It's such a great honor for me to have you on the show today. Thank you, Utkarsh, and I am really humbled and honored with your words, and really appreciate. Thank you very much, and a very good morning, good afternoon to all your listeners out there. Okay. So, sir, do you think Canada is really a land of opportunity? Very interesting question, Utkarsh. Uh, so, Canada is actually a land of opportunity, and I will tell you why. When I came to Canada, I was exploring the system, I was exploring the social, economical, as well as like the business world, how the things works in Canada. So with the time, I realized, I learned that Canada really gives an opportunity to every single individual who has a zeal to grow in their life. And you won't believe there are so immense opportunities available for those individuals who actually want to work on those opportunities. Not for everybody, for sure. But the reason behind that is, first of all, there's such an ease of doing business. Right. Second, the most important aspect of the business is you need to have a lot of funding for that. You need to have a lot of cash flow for that. And Right. Canadian economical system helps entrepreneurs with those initiatives where they have those kind of facilities available. And the third and most important thing which I love about this country is the respect to work. There are not many countries in the world where your work, your job is respected as it is respected in Canada. So everybody is so sincere onto their work, which really makes the entrepreneurs to grow on a very faster pace. So I would say absolutely Canada is a land of opportunities. It all depends upon you, how you explore that opportunity. Okay. Very nice, sir. So, sir, what do you think connecting with people, networking, etc.? Right. Utkarsh, I personally believe if somebody wants to be successful in any sphere of their life, either they want to go and work on a job and want to go on to a very high level into their career, or somebody has a zeal to grow as an entrepreneur. Connecting with people is the most important aspect of life. I'll tell you something interesting. When I have to hire somebody in my team, this is my first and foremost criteria. In first 30 seconds, I see how I'm connecting with that person, because your gut always gives you the right feedback. And if you can create that connection, if you are able to create that connect, it is simply like connecting your telephone, connecting your cell phone to the tower. If you have the right set of signal, your voice quality, your internet speed, like everything is going to be so smooth. Right. And I always tell my team, I would love to have people on my team who are average, but they are very well connected to each other, rather than having intelligent people or too intelligent people who doesn't have the ability to connect with people. Okay. Yes. So, what advice would you offer to someone who is considering moving to Canada? Okay, so if there is any immigrant, a lot of immigrants, they come to me for that advice, and I always tell them, guys, if you are coming to Canada, when you land on the airport, the very first thing, you have to leave your past behind. Don't bring the baggage of your past, because that is going to be one of the biggest hindrance in your growth and success in this country. Second thing, when you land on airport, just pray that you meet right people here. Yeah. You meet positive people here who can guide you in the right direction.
And third and most important thing I tell people, just bring a little luck with you. That luck can really help you to become successful in this country. So these are the three very important things. Don't bring your baggage of the country from where you are coming from. Just pray that you meet the right people, positive people in this country. And third, just have a little bit luck on your side. If you have this right combination of three things, believe me, it's going to be a tremendous success in this country for you. Absolutely awesome. So, okay, so let's talk about what were some toughest challenges you overcame while you were an immigrant? See, I would say I did not look towards those problems, towards those challenges as the challenges. For me, those were the building blocks. And every building block, when you get it, it comes in the form of a problem. It will come in the form of a challenge. So you have to start scraping the dust from top of it. And when you actually see what exactly it is, you will see an opportunity onto them. I would say when I came into this country, people have a language barrier. I could not feel that there is a language barrier because there's such a diverse community in this country and a lot of South Asian community, right? So that really is a big asset for us. Somebody has already done the background work for me when I'm landing in this Canada, the person who landed here 100 years before. So they have built the basic, the blocks of success for us. But as far as if I can talk about certain challenges, I would say getting the right set of people. That's very, very important. Right. But Utkarsh, you won't believe I call myself blessed. I keep getting amazing people in my life. Doesn't matter either I was in India or I was in Canada. Yeah. Right? So, those challenges, people look towards those things as a challenge. I look towards those things as an opportunities. Okay. So it's like अगर आप अच्छे होंगे तो लोग भी अच्छे मिलेंगे, right? बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ 100% एग्री करता हूं कि अगर आपका सोच, आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, तो आपकी सराउंडिंग में आपको उसी तरह के लोग अपने आप आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो सारी चीजें ना हमसे ही शुरू होती है। Right. Okay, so what advice would you provide to people who are currently working but want to establish their own company? This I encourage a lot of youngsters, especially who are running after the jobs, Utkarsh. I'll tell you, when I was doing a job, when I was working in this country, my job, I was making almost around $90,000. So one fine morning, 9 o'clock, I was leaving from my house and I was kind of debating with myself कि यार ये $2.5 लाख कैसे बना सकता हूँ। So जो सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहला जो चैलेंज, सबसे पहला जो रोड ब्लॉक मेरे सामने था ना, वो ये था कि जब तक मैं ये $90,000 का लालच नहीं छोड़ूंगा ना, जब तक मैं इस $90,000 को कमाना नहीं छोड़ूंगा ना, तब तक मैं $2.5 लाख नहीं बना पाऊंगा। And that was the thought process. And after 30 minutes, I went and resigned my job. It's a big decision, right? So my humble request and my strong advice to those people who have a zeal to grow, who wants to live an entrepreneurial life, या जिनके कुछ ख्वाब है जिंदगी में, तो ये जॉब का लालच छोड़ दो यार। अगर आप जॉब के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो ना, तो आप अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर, और जो आपका ड्रीम है उसके अंदर 10 गुना सक्सेसफुल हो सकते हो। और मैं हमेशा उत्कर्ष सबको ये बोलता हूं, अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, think like an entrepreneur in your job. Right. So that when you get an opportunity of that entrepreneurship, you don't have to change your mind a lot. Because if you get stuck up into that 9 to 5, जो एक आपका चक्रव्यूह कह रहे हैं ना, उस चक्रव्यूह के अंदर अगर एक बार आप फंस गए, तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं बहुत सारे लोगों को ये बात बार बार बोलता हूँ कि यार देखो, मुझे एक बात बताओ उत्कर्ष, अगर मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछूं, what is the best age to take risk for you? What is your answer? Like in my 20s? Whenever. If you are 30, if you are 40, this is the age. Today is the age to take the risk. Why? You're not getting younger and your liabilities is not going to be less. Yeah, right.
सिंपल. सो टेक दैट चांस टुडे. उस चांस को मत छोड़ो यार, एक बार आप वो चांस लेके तो देखो यार, जॉब तो दोबारा भी मिल जाएगी. राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का जो हम सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि कनाडा आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन. As early as you can after 12th. Why after graduation? Okay. उत्कर्ष, देखो जिंदगी में मैंने एक उसूल रखा है, अगर मुझे कोई काम कल करना है ना, मैं उसको आज करना पसंद करूंगा, क्योंकि कल उसकी मुश्किलें, उसके चैलेंजेस कम नहीं होने वाले. अगर आपका ड्रीम कनाडा है तो कम हियर एज अर्ली एज यू कैन, बिकॉज उस समय जो 12th ग्रेड के बाद जो आपकी एज है ना, आपको प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम लगती नहीं है यार, आप किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हो, किसी भी तरीके से जो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो. राइट. आप जैसे जैसे मैच्योरिटी की ओर जाते जाते हो लाइफ में, आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है. राइट. So I would always recommend after 12th. Okay, thank you. So how to convince parents for Canada? How to convince parents? Okay, that's very interesting. उत्कर्ष, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है ना किसी चीज की, अगर आपके अंदर उस चीज का जज्बा है, आपके अंदर उस चीज कर गुजरने की चाहत है, तो आपको कभी भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि ना जो पेरेंट्स, जो फादर और मदर है ना, वो आपको हर रोज ऑब्जर्व करते हैं, आपको हर रोज देखते हैं और आपकी नस नस को पहचानते हैं. और अगर आपका वो ड्रीम है ना, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कन्विंस्ड है. प्रॉब्लम क्या है कि ये जो यंगस्टर्स की एज होती है ना, उनके अंदर उतनी कन्विक्शन नहीं है. वो कहीं ना कहीं उस जिम्मेवारी से दूर भागते हैं, जिससे कि उनके पेरेंट्स का उनके ऊपर से, आप कह लें ट्रस्ट कह लें, खत्म हो जाता है, या उसके लिए मतलब आप ये कह लें कि उनको लगता है कि नहीं यार, मेरा बच्चा ना शायद खुद से नहीं कर पाएगा. तो मैं अपने बेटे के, मैं 8 साल के बेटे को ये सिखाता हूँ कि बेटा अभी से तुझे हर चीज खुद करनी है, हर डिसीजन तुझे खुद लेना है. मैं तेरे लिए एक मार्गदर्शक हूं. आई एम जस्ट अ गाइड टू यू. राइट. सो अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ट अप कर पाए और आप अपने पेरेंट्स को अपना वो जुनून दिखा पाए, अपने वो अंदर का पैशन उनको शो कर पाए, तो आप मुझे एक बात बताएं, कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे का सपना पूरा होता नहीं देखना चाहते? राइट. एज लॉन्ग एज हमारे अंदर उस चीज को कन्विंस करने की एबिलिटी है. अब ये आपने अपने पेरेंट्स को देखना है. कुछ पेरेंट्स जो है वो प्यार से मान जाते हैं, कुछ पेरेंट्स जो है वो लॉजिक से मानते हैं, और कुछ पेरेंट्स को जिद भी करनी पड़ती है यार. अगर मुझे अपना ड्रीम फुलफिल करना हो और उसके लिए मुझे जिद करनी पड़े, और उसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स से, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ना पड़े, और या अगर मुझे उनके साथ लॉजिक के ऊपर उनको कन्विंस करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा. राइट. और अगर आपके पेरेंट्स नहीं माने तो मेरे से बात करवा दीजिए. ओके. कनाडा आपको मतलब ओवरऑल सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है? एब्सोल्युटली. देखिए, खाली कनाडा ही नहीं उत्कर्ष, मैं पर्सनली इस चीज का बड़ा फर्म बिलीवर हूं कि हर बच्चे को अपने घर से दूर जाके रहना चाहिए. हर बच्चे को, और पेरेंट्स को भी मैं हर बार यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें कि वो अकेला जाके अपनी जिंदगी की फाइट खुद करना सीख सके. बिकॉज देखिए उत्कर्ष, आप अपने बच्चे को शेर बनाना चाहते हो या उसको आप दब्बू बनाना चाहते हो? अगर दब्बू बनाना चाहते हो तो उसको अपने आंचल में बांध के रखो. अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वर्ल्ड के अंदर जाके कामयाब हो और हर मुसीबत को खुद झेलने के काबिल बने, तो आपको उसको अनलिश करना पड़ेगा. आपको उसको वो लाइफ की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो जाके अपने आप से अपनी जिंदगी को खुद सीख सके. राइट. ओके. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग? जैसे आज सेव मैक्स है, तो सेव मैक्स एक ब्रांड हो चुका है बहुत बड़ा. लाइक जैसे आप हो, आप मतलब सेव मैक्स के आप लाइक जस्ट लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर हो. लाइक एक परसेप्शन है, रमन दुआ मींस सेव मैक्स. सो ये अपने आप में पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाए?
उत्कर्ष, चाहे वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करनी है, ये एक ना प्रोसेस है. इट इज नॉट वन डे जर्नी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्शन एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस. सो जब आप ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि मुझे दो ब्रांड को साइमल्टेनियसली बिल्ड करना है. एक है मेरा ब्रांड सेव मैक्स, और एक है मेरा ब्रांड रमन दुआ. राइट. अब इसमें ना बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है कि इसमें आपको बड़ा, यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि आपका एक ब्रांड दूसरे ब्रांड को इतना ओवर पावर ना कर जाए कि उसके बिना आपका काम ही ना चले. सो मेरे पास एक टाइम पे सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था, कि ब्रांड रमन दुआ जो है वो डोमिनेट कर रहा था सेव मैक्स के ऊपर. तो अब किसी भी आदमी को अगर डील करना है तो वो कहते थे जी हमें रमन दुआ से डील करना है. अब रमन दुआ तो हर जगह नहीं हो सकते. सो आई स्टार्टेडली वर्किंग ऑन टुवर्ड्स इट कि मैं किस तरीके से साइमल्टेनियसली सेव मैक्स ब्रांड को इतना बड़ा कर दूं कि उसके लिए रमन दुआ जो है उसकी जरूरत ना हो. दैट इज व्हाट इज आई कॉल इट एज अ सिस्टम. सिस्टम जो है वो कभी भी एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता. बट उसके अंदर मुझे अपना पर्सनल ब्रांड भी खड़ा करना था. उसका रीजन क्या है, मैं इस चीज में फर्मली बिलीव करता हूं कि जो इंडिविजुअल का ब्रांड होता है ना, जो उसकी कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ, वो अपने आप में बहुत बड़ी, और वो बहुत क्विकली होती है क्योंकि वो आपका कैरेक्टर है, वो आपकी पर्सनैलिटी है. राइट. सो इसके लिए जब भी आपको अपना ब्रांड बड़ा करना है या आपको अपने जो बिजनेस है उसका ब्रांड बड़ा करना है, तो आपको उसके लिए स्ट्रेटेजिकल प्लान करना पड़ेगा. और आज के टाइम में द बेस्ट पार्ट इज वी आर लिविंग इन एन एरा where social media is so prominent, so dominating, that it is so easy for us to reach out people. Right. Sitting at home through the social media, we can reach thousands and hundred thousands of people. हजारों लाखों लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं. सोच के देखिए, आज से 20, 25, 30 साल पहले ये लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी. तो आज के वक्त में ब्रांड बिल्डअप करना बहुत इजी है, जिसमें कि मैं 2 या 3 चीजें जरूर इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा. सबसे पहली चीज, ट्राई टू लुक एट कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक है तो आपको ब्रांड बिल्डिंग बड़ा इजी हो जाएगा. और तीसरी और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी अपनी कन्विक्शन क्या है उस ब्रांड बिल्डिंग के अंदर. अगर आपकी खुद की कन्विक्शन नहीं है तो आप किसी और को कन्विंस नहीं कर सकते. राइट. सो फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई अ जेन्युइन प्रॉब्लम. Second, find out a solution which nobody else is providing you. That will be very easy to go and build up a brand. And third, make sure you have your own conviction towards it. Okay, amazing. So, can you walk us through your typical day? We want to understand how you manage your time so effectively. So, Utkarsh, my typical day starts at 3:30 in the morning. And I have a habit of doing an hour meditation. So 3:30 to 4:30, I do my meditation. And then 4:30 to 5:30, I read my book. Okay. Right? So that's 2 hours daily routine. And then 5:30 to 6, I take my dogs out, go them, for a walk with them. And 6 o'clock, my physical trainer, my gym trainer comes at home. And then from 6 to 7, I'm doing my training with him. Yeah. Right? And 7 o'clock, like 7:15, I start my meetings, like, with my team in India or in Australia, and some local teams over here. So 7 to 8:30 or 9 o'clock, depending upon the day how it is, then I'm like conducting my meetings and sending all the instructions to all my team members and everything. And then around 10 o'clock I reach my office. So from 10 to 2 it goes, very busy schedule, all the meetings and everything. And then 2 o'clock is my lunch time. And then 2 to 2:30 I dedicate to lunch. And recently I have started taking a power nap in between 2:30 to 3 o'clock. Because that gives me a little bit energy booster, so that I can stretch my day until around 8 or 8:30. So then after 3:30, I have all my meetings scheduled, which goes around 8 o'clock. And then I come home, have my dinner, and 9:30 I'm on the bed. Nice, very nice. So when did you realize you wanted to establish your own business, and how did you get started with Save Max? When did I realize? Actually, somehow I think it was in my blood.
I was involved in small business with my parents from the grade 10. राइट तो इंडिया में मेरे डैड का उस समय दूध का काम होता था, वहां पे हमारे रोहतक में बीटा का दूध सप्लाई होता था, तो उसकी सप्लाई सुबह सुबह 5 बजे आती थी क्रेट्स के अंदर. सो आई यूज्ड टू गेट अप एंड स्टार्ट मैनेजिंग दैट एंड सेलिंग दैट मिल्क पैकेट्स जो होते हैं दूध के, राइट. तो उसका अकाउंट वगैरह मैनेज करना, तो मैं शुरू से मतलब उस चीज में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, राइट. पर जो सेव मैक्स की जर्नी थी, जब मैं इस कंट्री में आया कनाडा में, तो जब मैंने अपना पहला घर बाय किया, because of one or the other reason I plan to sell that house after 4-5 months. So जब उत्कर्ष मैंने 5 महीने बाद उस घर को बेचा, तो I made around $35,000 to $40,000 profit out of it. तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है यार, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल गेन है ना, जो आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस है उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन नहीं होता, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता. So that was basically a tax-free money for me. तो मैंने कहा दिस इज द बिजनेस व्हिच आई शुड डू. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल जॉइन रियल एस्टेट. सो जब मैंने अपना लाइसेंस वगैरह लिया, तो उसके बाद मैंने 2-2.5 साल के लिए आई वर्कड एज अ रियल्टर विद सम अदर ब्रांड. बट जो सेव मैक्स बना ना, सेव मैक्स बना एक प्रॉब्लम में से, एक चैलेंज में से, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था एंड आई वांटेड टू बिल्ड अप अ टीम, बिकॉज माय थॉट वाज आई शुड शेयर माय सक्सेस विद अदर्स. आई शुड बिल्ड अप मोर टीम मेंबर्स so that I have more hands to work on. और हर बार मुझे अपनी ब्रोकरेज से प्रॉब्लम आ रही थी. वो हर बार जब भी मैं कोई नया टीम मेंबर लाता था, वो मेरे लिए चैलेंज क्रिएट कर देते थे. And that was too much bothering for me, because I wanted to focus on my work. So I thought, for how long I'm going to keep going through that trouble. So why don't I open up my own brokerage? Why don't I open up my own brand? And after almost like little less than 3-year experience, I decided to launch SaveMax, which itself was a very crazy decision. बिकॉज उस समय मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे. सो हमने 2010 में सेव मैक्स को जो अपने घर की एक बेसमेंट से शुरू किया था, तो वो बड़ी छोटी सी 700 स्क्वायर फीट की बेसमेंट थी, और उसमें जो है वो बेसिकली रहने के लिए बनी हुई थी, और उसमें जो बेडरूम्स थे हमने उनको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, और जो लिविंग एरिया था उसको रिसेप्शन में कन्वर्ट कर दिया. सो दैट्स हाउ सेव मैक्स केम इनटू एक्जिस्टेंस. ओके, एंड इट्स गोइंग गुड, राइट? एब्सोल्युटली. एंड स्टूडेंट्स क्या वर्क परमिट में हाउस बाय कर सकते हैं? आपका क्या ओपिनियन होगा? सो उत्कर्ष जो कनाडा में सिस्टम है, उसमें अगर आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे हैं तब भी घर बाय कर सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है. अगर आप वर्क परमिट पे हैं आप तब भी घर बाय कर सकते हैं. हाँ, उसकी कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं व्हिच यू हैव टू फॉलो, राइट. सो वो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं बैंक्स के मॉर्गेजेस के लिए. अगर कोई नॉन रेजिडेंट भी है तो वो भी यहाँ पे घर बाय कर सकता है. पर अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज किए हैं, तो जनवरी के बाद जो लोग यहाँ रह नहीं रहे हैं, राइट, जैसे मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं वर्क परमिट वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअली इस कंट्री में नहीं है, वो लोग घर नहीं बाय कर पाएंगे कनाडा में. पर अगर कोई यहाँ पे स्टडी परमिट पे है, अगर कोई यहाँ पे वर्क परमिट पे है, तो आप लोग आराम से घर बाय कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू क्वालिफाई फॉर द मॉर्गेज. ठीक. सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज सक्सेस? How do you define success? Utkarsh, that's a very intelligent question. See, success की definition हर इंसान की अपनी अपनी होती है, right? Let's say if there's a student, उसके लिए success क्या है? अच्छे मार्क्स लेके आना. एक छोटा बच्चा है 2 साल का, right? उसके लिए success क्या है? दौड़ना, चलना, खुद से खाना, right? इसी तरह से अगर कोई रिसर्चर है, उसके लिए सक्सेस है जो वो रिसर्च कर रहा है, उसकी बेस्ट आउटकम निकाल के लाना, राइट. सो हर एक आदमी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, और इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम. सो एक टाइम पे मैंने आपको बताया मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या थी. आई वांटेड टू मेक $250,000, राइट. उस समय मनी वाज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस फॉर मी. पर मैं आपको अपनी आज की सक्सेस की डेफिनेशन बताता हूं कि आज मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है. आज मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है, मैं कितने लोगों की सक्सेस क्रिएट कर सकता हूं जो मेरे सराउंडिंग में. सो द मोर पीपल आई मेक सक्सेसफुल, द बेटर आई बिकम ऑन माय पैरामीटर ऑफ सक्सेस. सो ये जो है ना, वक्त के साथ साथ बदलती रहती. हर आदमी को अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद डिफाइन करनी पड़ती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो देयर इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म गोल, अ लॉन्ग टर्म गोल.
सो मेरा आइडिया क्या होता है उत्कर्ष, मैं हमेशा 1 साल, 3 साल और 5 साल का प्लान अपने साथ लेके चलता हूँ। मैं 6ठे साल के बारे में कभी भी नहीं सोचता। सो मुझे ये पता है कि आज से 1 साल बाद मुझे कहाँ होना चाहिए, आज से 3 साल बाद मुझे कहाँ होना चाहिए, और आज से 5 साल बाद मुझे कहाँ होना चाहिए। राइट। सो आज की मेरी सक्सेस क्या है, हाउ मेनी पीपल आई कैन क्रिएट सक्सेसफुल। मैं 1000 मिलियनर्स बनाना चाहता हूँ सेवमैक्स सिस्टम के अंदर बाय 2025। Absolutely amazing sir. So अभी आपने जैसे सेवमैक्स पोस्ट लैंडिंग सर्विस लॉन्च की सर, उसके बारे में थोड़ा बता दो। उत्कर्ष, कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम में से निकल के आता है, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन तब निकल के आता है जब आपने वो प्रॉब्लम खुद फेस की। सो जब मैं इस कंट्री में एज एन इमिग्रेंट आया, तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि यार मुझे कोई बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने कौन आने वाला है, मैं अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलूंगा, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, मेरी जिंदगी कैसे शुरुआत होगी यहाँ पे, और अगर कल को मुझे जॉब चाहिए तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी। राइट। और बड़ी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस को, आपके फर्स्ट थॉट प्रोसेस को इस कंट्री के बारे में अच्छा या बुरा बना सकती है। तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं उत्कर्ष। लेट्स से आप एक नए इमिग्रेंट की तरह यहाँ पे लैंड किए, और आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है। आपने सबसे पहले एक टैक्सी वाले को किया, राइट। वो टैक्सी वाला आपको जानता पहचानता नहीं है, आपको एक अंदर डर लगा रहेगा, यार पता नहीं है मुझे कहाँ ले जाएगा, पता नहीं है मुझसे ठीक पैसे चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या मैंने ठीक टैक्सी हायर की है। राइट। सो वो आपके माइंड में एक डाउट रहेगा उस चीज का। फिर आप वहां पे बैठे हैं, आपने अकोमोडेशन कैसे फाइनल की, आप गए, आपने कुछ इंटरनेट पे 2-4 घर सर्च किए और आपने कोई अकोमोडेशन फाइनल कर दी। आप किसी होटल में रहने जा रहे हैं जिसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। राइट। वहां पे आपको लोकेशन क्या है, किस तरह की फैसिलिटीज हैं, फिर आपको बैंक के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने में 1-1 महीना लग जाता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से लेना है आपको कोई बताने वाला नहीं है। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम उसका एक सॉल्यूशन लेके आए हैं कि आपको एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू एक पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज, जिसकी शुरुआत हम जब आप इंडिया में हैं तभी से कर देते हैं। जो हमारा पहला सेशन है उसके अंदर, व्हेन अ पर्सन इज इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, देयर फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट इन देयर ओन कंट्री। फिर उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर, जिसका आपको पता होगा कौन ड्राइवर है, और वो आपको पता है कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा हुआ ड्राइवर है, वो आपको वहां पे पिक करने के लिए आएगा। उसके बाद आपको जो अकोमोडेशन मिलेगी वो हमारी अपनी अकोमोडेशंस हैं, जिसमें कि आपको पता है कि हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटी है। सो ऑल दैट फैसिलिटीज इज इन अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड वे। उसके बाद हमारी टीम जो है आपको वहां पे वेलकम करने के लिए तैयार है। आपको राइट अवे नेक्स्ट डे हमारे ऑफिस में बुलाया जाएगा, वहां पे आपको पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से कैनेडियन सिस्टम वर्क करता है। सो जो काम किसी इंसान ने 6 महीने में करना है वो हम 6 दिन में, उसके साथ वो 6 दिन में उसको 6 डेज के अंदर वो हर चीज का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी, जिससे कि उसकी सक्सेस और उसका पहला एक्सपीरियंस जो है इस कंट्री का, दैट इज गोना बी अमेजिंग। या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एब्सोल्युटली राइट। सो थैंक यू वेरी मच सर। जिसको भी जाना हो savemac.com पे चेक कर सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। सो वी हैव एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म savemax.com, जहां पे आपको कैनेडियन प्रॉपर्टीज, इंडियन प्रॉपर्टीज और उसके अलावा पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको जो है वहां पे मिलेगी। और उसके अंदर 11 कंट्रीज के अंदर उत्कर्ष ये वेबसाइट हमारी अवेलेबल है, और आपको जो कैनेडियन प्रॉपर्टीज है वो आपको लोकल करेंसी में मिलेगी वहां पे। राइट। सो एनीबॉडी कैन गो एंड विजिट savemax.com. Right. So it's time to end up this podcast. Thank you very much, sir, for your valuable time. And thanks everyone for listening this podcast. If you enjoy this episode, you'd like to support the podcast, please share it with others, post about it on social media, or leave a rating and review. To catch all the latest from me, you can follow me on Instagram _Utkarsh Parashar, and also follow sir on Instagram, Rise with Raman. And I'll see you next time. Thank you. Thank you, Utkarsh, and thank you to all the viewers and listeners for your podcast.